محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے. خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. ریاست بھر میں غریب مریضوں کو کارپوریٹ طرز پر مل رہی طبی خدمات. BRS کا بڑا کارنامہ. نظام آباد ضلع سرکاری دواخانے کی خدمات قابل ستائش. ریاستی وزیر بیملا و دیگر. کرانہ دکان چلانے والے شوہر بیوی کا سارقوں نے کیا بہیمانہ قتل. زیور لوٹ لیے. آرمور کے بعد بیرپور میں سرقہ و قتل کی واردات. عوام میں خوف. شہر کا انڈسٹریل علاقہ دلدل میں تبدیل. شدید سڑکیں بری طرح تباہ. دلدل و کیچڑ. عوام کو بے شمار مشکلات. اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. ضلع کے سرکاری اسپتال میں مریضوں کی خدمت قابل ستائش. نظام آباد جنرل اسپتال کی خدمات ریاست میں شہرت. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا بیان. ضلع مستقل کے سرکاری جنرل ہاسپٹل عوام کی خدمت پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ستائش کی. اس ہاسپٹل کو 1,95,00,000 کی لاگت سے نصب کیے جانے والے فائر اینڈ سیفٹی سسٹم کے کاموں کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، ZP چیئرمین ڈی وٹھل راؤ، اربن MLA بیگلا گنیش گپتا، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، میئر ڈی نیتو کرن کے ہمراہ سنگ بنیاد ڈالا گیا. اسی طرح جوسل لوکس جیولری شعبے کی جانب سے ہاسپٹل کی مریضوں کی سہولت کے لیے 30 لاکھ کی لاگت کی بس کے عطیے کو قبول کرتے ہوئے بس کا آغاز عمل میں لایا گیا. ریاستی حکومت ریڈ کراس شعبے کے تعاون سے ضعیف اور ٹرانسجینڈروں کی خدمت کے لیے دی گئی ایمبولینس کو جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی قیادت میں کیے گئے سیمولیشن ورک شاپ کا ریاستی وزیر نے افتتاح عمل میں لایا. اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ غریب عوام کی نظام آباد ہاسپٹل میں خدمت خلق کرتے ہوئے بہتر خدمت انجام دیے جانے سے ریاست بھر میں نظام آباد ہاسپٹل کو شہرت حاصل ہے. اس بات کو ریاستی ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ نے CM KCR کے علم میں لائی. اس ہاسپٹل کی ترقی کے لیے جہاں تک ہو سکے میں بھی اس کا تعاون کرنے کا تیقن دیا. عطیہ دیے جانے والے معاون کے ذریعے مریضوں کی بہتر خدمت کرنے کا انہوں نے ہسپتال سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج کو مشورہ دیا. اس ہاسپٹل کے لیے ڈائگنوسٹک شعبے کے ذریعے دیے جانے والے بہتر خدمات کو نیک ایکریڈیشن پہچان دیے جانے پر ریاستی وزیر نے ستائش کی. ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج کے یہاں 3 سالہ خدمات مکمل ہونے پر انہیں کیک کھلاتے ہوئے مبارکباد پیش کی گئی. اس پروگرام میں DCMS چیئرمین موہن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، TNGO سنگم ضلع صدر A کشن، ریڈ کراس سوسائٹی نمائندے B انجنائلو، T شیکھر دیگر موجود تھے. Technicians and everyone. And for getting of this NAC accreditation certificate for diagnostic hub of Nizamabad. And I am told that this is the first hospital which has got this NAC accreditation certificate. I once again congratulate you. And me and Honorable MLA Ganesh Gupta and Honorable ZP Chairman Vitara were assured you for the development of the hospital in our capacity. Whatever we can do, we will do. And we request you all to be with humanity, serve with humanity, and you are only the hope for the poor people of the district. And already you are doing best services. You have got a good name in entire state. Recently, our Honorable Minister, Health Minister Harish Rao Garu, was referring this government hospital, Nizamabad Government Hospital,
with Honorable CM Garu that this Nizamabad hospital is doing very well and serving poor people at their extensive capacity. Some of the treatments, those which cannot be done in the private hospitals also, you are taking up successfully. And CM sir was also very happy with your services. And we are all also very happy with your services. Once again, I congratulate you and I wish you good luck. आटो नगर जो इंडस्ट्रियल इलाका होने के साथ साथ गुंजान आबादी बस्ती है। यहाँ की सड़कें बुरी तरह तबाह, गहरे गड्ढे, जगह जगह कचरे का अंबार, बदबू व ताफून, कीचड़, गलाजात, ड्रेन का पानी सड़कों पर जमा, अवाम को शदीद मुश्किलात, मगर अहदेदारान की लापरवाही, बरसों से अवाम मुश्किलात का शिकार। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन और बारिश का पानी नजर आ रहा है। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी हैं, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। ऑटो नगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटो नगर के अहब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटो नगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने का सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की खुद साख्ता फलाही कमेटी मुंतखबा कायदीन और ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। रंजन किसानों का एहतजाज कामयाब। किसानों को खेतों में जाने के लिए सड़कें डालने की 19वें रोज के एहतजाज से हुकूमत की जानिब से एमएलए शकील आमिर के ताउन से 3 करोड़ 45 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी। रेंजर मंडल मुस्तखर के गांधी चौक पर किसानों के एहतजाज रियाली 29वें रोज में दाखिल। इस मौके पर मुकामी सरपंच बीआरएस फायर रमेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि बंधाला, मसपूर, गंगम्मा, शिव मंदिर बाईपास सड़क के कामों को अमल में लाने के लिए किसानों का एहतजाज काबिल कबूल है। इस मामले को लेकर मुकामी एमएलए शकील आमिर ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए हुकूमत की जानिब से 3 सड़कों की तामीर के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपयों की मंजूरी लाई। इन सड़कों की तामीर से आवाम को दुपेली, ब्राह्मणपल्ली, रेंजल गाँव वालों और किसानों को काफी सहूलत होगी। गुज़िश्ता में इन सड़कों की तामीर के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन कंट्रैक्टर की कोरोना वबा से मौत वाक़ होने से काम अधूरा रह गया था। अब इन कामों को जल्द ही टेंडर के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। किसान अपनी इस हड़ताल का खात्मा करने की सरपंच ने किसानों से अपील की। इस मौके पर किसानों ने बताया कि सड़क तामीर कामों के आगाज किए जाने के बाद ही हड़ताल खत्म किए जाने की बात बताई। तब तक किसानों की हड़ताल जारी रखने का अज़्म बताया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन रफीउद्दीन दिगर मौजूद थे। మా రెంజల్ గ్రామంలోని రైతులందరూ గత 29 రోజుల నుంచి ఇక్కడ బందల్లా మాచపురం రోడ్డు కోసము వాళ్ళు నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది. గతంలో 8 సంవత్సరాల కింద ఆ రోడ్డుకు శిలాఫలకం వేసి ప్రారంభించడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు ఆ కాంట్రాక్టర్ పని చాలు చేసి ఆ సబ్ కాంట్రాక్టర్ మరణించడం వలన ఆ రోడ్డు పనులు మధ్యంతరంగా ఆగిపోయినాయి. గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆ రోడ్డు పనులు ఆగిపోయినాయి. గత 3 సంవత్సరాల కింద దాన్ని మళ్ళీ వేరే కాంట్రాక్టర్కు మార్పించి అది మళ్ళీ చేయడానికి మేము వేరే కాంట్రాక్టర్కు మార్పించడం జరిగింది సార్తో, ఎమ్మెల్యే సార్తో. ఆ కాంట్రాక్టర్ కూడా మధ్యలో కరోనా రావడం వలన ఆ పనులు చేయలేదు. తర్వాత తన హెల్త్ బాగాలేకపోవడం मोसरा मंडल के सरकारी तामीरी कामों में मिलावट, नाक़िस डैमेज मुनहदिम, डबल बेडरूम घर पानी से मुतासिर, अवाम बरहम, बीजेपी कायदीन का बयान। मोसरा मंडल मुस्तखर में बीआरएस फायर सड़क कंट्रैक्टर के लड़के ने गांव में ड्रेनेज की तामीर करवाई।
जिसमें नाफिस मटेरियल के साथ नाफिस काम अमल में लाया गया, जिसकी वजह से वो ड्रेनेज दबकर गिर चुकी है। ये बाप बेटे इक़्तिदार के नाम पर नाफिस कामों को अंजाम देते हुए आवाम को लूट रहे हैं। गुज़िश्ता में तामीर किए गए डबल बेडरूम घरों का भी यही हाल है। गुज़िश्ता में तकसीम किए गए ये डबल बेडरूम से पानी छत से टपकने लगा है। ये सरकारी घर अब रहने के काबिल नहीं रहे। इस प्रोग्राम में मोसरा नायब सरपंच बी सुदर्शन गौड़ और दीगर मौजूद थे। రెండు రోజులలో గత 2 రోజులుగా పడుతున్న వర్షాలకు చిన్న చిన్న వర్షాలే, ఇంకా పెద్ద ప్రళయాలు రాలేదు, లేకపోతే ఇంకా పెద్ద ఉద్ధృత వర్షాలు పడలేదు, లేకపోతే పైనుంచి కొండపై నుంచి నీరు వచ్చి మీ డ్రైనేజ్ కూలిపోయడానికి ఆస్కారం లేదు. చిన్న చిన్న వర్షాలకే కూలిపోయింది. దాంతోపాటు 2 రోజులు జరుగుతున్న వర్షాలకు కూలిపోయినదని తెలిసి కూడా ఈరోజు మీరు మోస గ్రామానికి మోస మండలానికి వచ్చి డబుల్ బెడ్రూము ఇవ్వడం జరిగింది. సంతోషము. దాంతోపాటు నిన్న మొన్న జరిగిన ఈ డ్రైనేజ్ కూలిపోయిన దాని గురించి మీకు మీ కార్యకర్తలు కానీ మీ నాయకులు చోటా మోటా నాయకులు చెప్పారో లేదో మాకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ సందర్శిస్తే బాగుంటుందని మేము ఆగడం జరిగింది. एड़पल्ली गांव में 22 रोज से जारी सफाई मजदूर हड़ताल में खलल पैदा करने की सरपंच की साजिश। रियासत के ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की हड़ताल के 22वें रोज मुकम्मिल हुए। हुकूमत की जानिब से अब तक सफाई मजदूरों की हड़ताल को कोई अहमियत नहीं दी गई। सफाई मजदूरों की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल जारी है। ऐसे में गांव में गलियों में कोई सफाई नहीं की जा रही है। ड्रेनेजेस की सफाई न होने से हर गांव में बदबू फैलने का अंदेशा हो गया। एडपल्ली मंडल मुस्तखल में सफाई मजदूरों की हड़ताल आवाम की तकालीफ को समझते हुए मुकामी सरपंच मुकामी एमपीटीसी शेख जावेद ने दीगर मजदूरों के जरिए गांव की सफाई कराने की कोशिश कर मुकामी सफाई मजदूरों को इस बात की इत्तला मिलते ही कुछ मजदूर हड़ताल से उठकर गांव के सफाई के कामों को रोक दिया। दीगर मजदूरों को उन्होंने रोकते हुए प्राइवेट मजदूरों के पैरों को धोते हुए उन पर फूल बरसाए। हमारे हक तलफी न करने 22 रोज की इस हड़ताल को रायगा न जाने की तजवीज पर प्राइवेट मजदूर वहां से वापस चले गए। इस मौके पर मजदूर यूनियन जेएसी खायर जे गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर अपनी आंखें खोलते हुए बढ़ती महंगाई के इस दौर में सफाई मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए मजदूरों को परमिनेंट करे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే సిపిఎం అనుబంధ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సహాయ సహకారాలతోటి సమ్మె చేపడుతూ గ్రామ పంచాయతీలకు అటెండ్ కాక వారు ఏదైతే ధర్నా కార్యక్రమం తీసుకున్నారో ఆ ధర్నా కార్యక్రమం మూలంగా ఈరోజు సమ్మె 21 రోజులు దాటి ముందుకెళ్తా ఉన్నది. దాంట్లో భాగంగా గత 21 రోజుల నుంచి గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు కార్మికులు గ్రామ పంచాయతీకి రాకపోవడంతో గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి చెత్తా చెదారం ఎక్కడిదక్కడ వేసిన గొంగడిగా మారింది. దాదాపు మా యొక్క ఎడపల్లి గ్రామంలోనే చూసుకుంటే రోజువారీ కార్యక్రమంలో 8 ట్రాక్టర్ల చెత్త 2 ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజుకు 21 రోజులు కావడంతో గ్రామాల్లో ఉన్న చెత్తా చెదారం పేరుకపోవడంతో అసౌకర్యంగా ఏర్పడే కార్యక్రమంగా ఉంది. ఇది ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. స్కూల్ పిల్లలకు కానీ ఇక్కడ జరిగే సంత అంగడిలో కానీ ఎక్కడెక్కడ ప్రధాన కూడల్లో ఉన్న చెత్తను ఏరివేయడానికి నానా తంటాలు పడాల్సిన కార్యక్రమంలో మాకు ఈరోజు సిఐటి అనుబంధ సంస్థల ద్వారా వ్యతిరేకతతోటి వారు మా కార్యక్రమాలకు అడ్డుదలగడంతో ఈరోజు మేము పోలీసు వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకొని దాన్ని ఛేదం చేసే కార్యక్రమంలో ఈరోజు కార్యక్రమం తీసుకున్నాము. शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से आम जिंदगी हो रही बुरी तरह मुतासिर। कमसिन बच्चे अक्सर इन आवारा कुत्तों का बन रहे शिकार और कुत्तों के हमले में कई बड़े बच्चे बुरी तरह जख्मी। बावजूद इसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद को इसकी कोई परवाह नहीं। माना है निजामाबाद शहर और जिले के मंडलों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बेहद खौफजदा है। शहरी इलाके में कुत्तों की कसरत और काटने के वाकयात से महफूज नहीं है। निजामाबाद शहर में जारी साल अक्टूबर तक आवारा कुत्ते के काटने के 347 वाकयात पेश आ चुके हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक आदत को शुमार है। शहरी इलाकों की गलियों में शाम होते ही आवारा कुत्ते सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और राहगीरों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलखुसूस मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं।
सारे जिले में कुत्ते के काटने के 2893 केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद और आरमूर में सबसे ज्यादा वाकयात मंजरे आम पर आए हैं। 2 माह कबल शहर के डिवीजन नंबर 52 हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को काटते हुए शदीद जख्मी कर दिया। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 डिवीजनों के मिंजुमला फी डिवीजन में 50 का 100 कुत्ते पाए जाने के आदाद शुमार का इंकशाफ हुआ है। क्या ये डिवीजन की तरक्की मानी जाए या कॉर्पोरेटर की कारकर्दगी? रिहायशी इलाकों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों की खसी का ऑपरेशन माह अगस्त से रोक दिया गया है। हालिया दिनों में ऑटो नगर में एक म्यूनिसिपल एई को कुत्ते ने काट लिया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कुत्ते ना हो, बल्कि हर गली और हर सड़क पर कुत्तों की कसरत दिखाई दे रही। मासूम बच्चे जो गली और सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों से लाइल्म होते हैं, वो घर से बाहर निकलने की सूरत में इन्हें बुरी तरह काट लिया जा रहा। बल्दिया के ओहदेदार और कॉर्पोरेटर्स की रोष को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ते काटने के किसी बड़े वाक़ये का इंतजार कर रहे थे, और यही हुआ। 2 माह कबल हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को बुरी तरह काट लिया। इसके बाद कुत्ते पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। खबरे ऐसी वक्त ही मीडिया की जानिब से बल्दिया ओहदेदार और कॉर्पोरेटर्स को आवारा कुत्तों की कसरत के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा रही थी। अवाम की जानिब से भी कॉर्पोरेटर से कुत्तों की कसरत के सिलसिले में शिकायत की जाने के बावजूद लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा था, जिसका खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। तवज्जो दिलाने के बावजूद गफलत का मुजाहिरा करना मुंतखब लीडर्स की रोश नहीं हो सकती। मासूम बच्चों को कुत्ते काट लेने के वाक़यात के बाद होश में आया कहां की अक्लमंदी। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाक़यात का खतरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? बिरपुर मंडल में कत्ल डकैती का वाकया। मंगल की रात नामालूम अफराद के हाथों मियां बीवी का बेदर्दी से कत्ल। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल के रईतुनगर गांव में नामालूम अपराध के हाथों मियां बीवी का कत्ल। तफसीलात के मुताबिक गांव में नारायणा नामी शख्स उसकी बीवी किराना दुकान चलाते थे कि नामालूम अपराध ने मंगल की रात नारायण के सर पर लोहे की सलाख से वार करते हुए और उसकी बीवी सुलोचना को साड़ी से फांसी देते हुए कत्ल किया। घर के पिछले हिस्से से आए सारिकों ने दोनों का कत्ल करते हुए सुलोचना के तलाई जेवरात का सरखा किया। वहां के हालात को लेकर खानदान वालों ने ये बात बताई। कत्ल डकैती की इत्तला मिलते ही बांसवाड़ा डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी CISI अमले के हमरा मौके वारदात पहुंचे और कत्ल की वजूहात मालूम करने की कोशिश की। इस मौके पर सबूतों को तलाश किया गया। पंचनामा के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। దారం నారాయణ దారం సులోచన అని ఇద్దరు దంపతులు, వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్, 70 ఏళ్లకు దగ్గరగా ఉన్నారు. రాత్రి సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లో ప్రవేశించి వారిద్దరిని కూడా హత్య చేయడం జరిగింది. హత్య చేసి కొన్ని వస్తువులు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. దీని మీద మేము 302 379 కేసు కింద కేసు నమోదు చేసుకొని సెక్షన్ల కింద దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. త్వరలోనే మేము ఈ నేరానికి పాల్పడిన వారిని అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్తారు. సొంత మేనమామ, నా పేరు పాత బాలకృష్ణ. నేను జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడిని. రైతునగర్ గ్రామంలో మరి దారం నారాయణ అనే వ్యక్తిని, అదేవిధంగా వాళ్ళ సతీమణి అయినటువంటి దారం సులోచన గారిని మరి చంపి పడేసినట్టుగా ఇక్కడ ఆనవాళ్ళు కనబడతా ఉన్నాయి. మరి యాక్చువల్గా వాళ్ళు పొద్దునే నాకు ఈరోజు పొద్దున్నే 8:30కు డోర్లు ఇంకా తీస్తలేరని చెప్పేసి ఉదయమే 6 గంటలకే వాళ్ళు తీసి కిరాణా షాప్ నడిపిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇంకా తీయట్లేదని చెప్పేసి పొద్దున చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు డోర్ కొడితే మరి వెళ్ళకపోతే అక్కడ లోపల నుంచి చూస్తే మరి శవాలు పడి ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చూసి వెంటనే నాకు ఇన్ఫామ్ చేయగానే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సిఐ మురళి గారికి, అదేవిధంగా డిఎస్పి గారికి నేను సమాచారం ఇవ్వగానే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి మరి క్లూస్ టీమ్ను మరి డాగ్ స్క్వాడ్ను ఏర్పాటు చేసి तेलंगाना के हॉस्टल्स मसाइल से दो चार। हुकूमत हॉस्टल्स की मसाइल की एक स्विंग के लिए फंड्स जारी करते हुए तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को संवारे। SFI तलबा तंजीम का मुतालबा। SFI फेडरेशन जिला कमेटी की क़यादत में आरमूर से नवीपेट जीप दौरा का 5वें रोज मुकम्मिल। 5वें रोज BC SC हॉस्टल्स का टीम ने माना किया।
इसके बाद भगत सिंह मुजस्समे को फूल के हार डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एसएफआई जिला सेक्रेटरी बी अनिल कुमार ने बात करते हुए बताया कि भगत सिंह के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके रास्ते पर चलते हुए जीप यात्रा का इनेकाद किया गया। तेलंगाना के सरकारी हॉस्टलों में बच्चों को मसाइल से दो चार करना बड़े ही शर्म की बात है और इन हॉस्टलों में आउटसोर्सिंग खिदमत करने वाले मजदूरों को 5 महीने से उजरत न दिया जाना बहुत तकलीफदा बात है। हॉस्टल इमारतें खस्ता हालत पर पहुंच गई हैं, इसलिए तुलबा खौफ से अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सरकारी ओहदेदार अवामी कायदीन अभी भी महुए खौफ से जागकर हॉस्टल के मसाइल की यकसुई करें। केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम के झूठे वादे किधर गए? हॉस्टल स्कूलों की अतरा चौधरी की हुकूमत फौरी तामील अमल में लाए। बढ़ाए गए हॉस्टल्स में चार्जेस को हुकूमत फौरी जारी करने का एसएफआई कायदीन ने पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर एसएफआई जिला सदर आर विघ्नेश और दीगर मौजूद थे। జీబీ యాత్ర ఈ నెల 22 నుంచి 30 డేట్ వరకు ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా హాస్టళ్లలో ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన జీబీ యాత్రను ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈరోజు 5వ రోజు నైపేట మండలానికి చేరుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా భగత్ సింగ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి భగత్ సింగ్ యొక్క ఆశయ స్ఫూర్తితోటి ఆయన జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఎస్ఎఫ్ఐ పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ దీంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన సర్వే చేస్తూ నైపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి దాంతోపాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ ఎంఈ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఎంఈ పోస్టులు దాంతోపాటు యూనిఫామ్లు పాఠ్యపుస్తకాలు హాస్టల్లో మెస్ ఛార్జీలు ఇంకా పెంచాలని చెప్పేసి కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా పెంచాలని చెప్పేసి శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ హాస్టళ్ల భవనాలని పునర్నిర్మించాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ ఈ యాత్రలో భాగంగా ఇటువంటి సమస్యలపైన పోరాటం చేస్తూ ఈరోజు యాత్ర కొనసాగుతూ ఉంది। కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కారం చేసే రకంగా खबरों के अख्ताम से खबर डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में गरीब मरीजों को कॉर्पोरेट तर्ज पर मिल रही तिब्बी खिदमत, बीआरएस का बड़ा कारनामा। निजामाबाद जिला सरकारी दवाखाने की खिदमत काबिल सताइश, रियासती वजीर बेमुला व दीगर। किराना दुकान चलाने वाले शौहर बीवी का सालिखों ने किया बहिमाना कत्ल, जेवर लूट लिए। आरमूर के बाद बीरपुर में सरका वो कत्ल की वारदात, अवाम में खौफ। शहर का इंडस्ट्रियल इलाका दलदल में तब्दील, शदीद सड़कें बुरी तरह तबाह, दलदल व कीचड़, अवाम को बेशुमार मुश्किलात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।